Friends, I am Ranjit Dhunde, doctorate in mathematics. Today I am going to give lecture on rank of a matrix. Now let us discuss the rank of a matrix and its need. सवाल यह है कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की ज़रूरत क्यों है। तो इसका आंसर यह है कि rank of a matrix is play a very important role in existence, uniqueness and general structure of the solution of system of linear equations. Now we define rank of a matrix. A non-zero matrix A is said to have rank R if it has at least one non-zero minor of order R and every minor of order higher than R is 0. Here minor be the determinant of square submatrix and simply rank be the highest order of any non-zero minor of the matrix A. Now if the size of the matrix is very large, then it is very difficult to determine the determinant of square submatrix. Therefore, we define another definition to find the rank of a matrix. Rank of the matrix A is the number of non-zero rows in the row echelon form of A. Now what do you mean by echelon matrix? So matrix A is called an echelon matrix if the following two conditions hold. Number one, all zero rows if any are at the bottom of the matrix, and number two, each leading non-zero entry in a row is to the right of the leading non-zero entry in the preceding row. Now how we can reduce the given matrix into echelon matrix? So for this we use elementary row operations for matrices. So what are the elementary row operations for matrices? So there are three elementary row operations for matrices. Number one, interchange of two rows, and आप इसका मीनिंग आप कोई भी दो रो इंटरचेंज कर सकते. फॉर एग्जांपल इंटरचेंजिंग ith row to the jth row. नंबर टू, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो बाय नॉन जीरो कांस्टेंट के, यानी आप कोई भी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते. नंबर थ्री, एडिशन ऑफ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो. Similarly, we can listed the elementary column operations for matrices also. Now we define equivalent matrices. Two matrices A and B are said to be equivalent if one is obtained from the other by a finite sequence of elementary row or column operations. The row or column equivalent matrices have the same rank. Now let us discuss the rank of a matrix with example. Now first example, determine the rank of the matrix A is equal to, this is the 4 by 4 matrix, and therefore rank A is less than or equal to order 4. Now if we determine the rank of the matrix, that means we reduce the given matrix into echelon form. फिर हम echelon form में कैसे इसको reduce करेंगे? तो आप लोगों को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करना पता है. तो दिस इज, ये हमारा फर्स्ट लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है, यहाँ ये डायगोनल एलिमेंट है. तो हमें करना क्या है, हमें ऑल द एलिमेंट्स बिलो दिस एलिमेंट्स आर जीरो. तो हमें ये जो R2 का ये जो 1 है इसको जीरो करना है, ये R3 में जो ये 3 है ये जीरो करना है, और R4 में जो 2 है इसको जीरो करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस. तो R2 चेंजेस, अब 1 माइनस 1 जीरो होता है, तो R2 चेंजेस R2 माइनस R1. अब 3 माइनस 1 जीरो नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, R3 चेंजेस 3 मीन्स R3 माइनस 3 टाइम्स 1, तो 3 टाइम्स R1. अब फिर से R4 में भी जीरो करना है, तो 2 माइनस 1 जीरो नहीं होता है, तो R4 चेंजेस R4 माइनस 2 टाइम्स R1. अब ये जो चेंज है हम वो नए मैट्रिक्स में लिखेंगे, तो इट इज इक्वल टू ओल्ड मैट्रिक्स. अब हम यहाँ इक्वल साइन नहीं लिख रहे क्योंकि ये इक्वल नहीं है, इट इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स. तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं कर रहे, फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 1 6. अब चेंज हो रहा है सेकंड रो में, और वो भी चेंज है R2 माइनस R1.
तो 1 minus 1 आंसर 0, minus 1 minus 1 आंसर -2, 2 minus 1 आंसर 1, 5 minus 6 आंसर -1। अब R3 में चेंज क्या है, R3 minus 3 times R1, यानी 3 minus 3 times 1 0, 1 minus 3 times 1 आंसर -2 हो रहा है, 1 minus 3 times 1 आंसर -2 हो रहा है, और 8 minus 3 times 6 यानी 8 minus 18 आंसर -10 हो रहा है। अब R4 में चेंज करते तो चेंज क्या है, R4 चेंजेस, R4 -2 times R1, तो 2 minus 2 times 1 तो 0 हो रहा है, -2 2 times 1 तो -4 हो रहा है, 3 minus 2 times 1 तो 3 minus 2 1 हो रहा है, 7 minus 2 times 6 यानी 7 minus 12 आंसर -5 हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट था और इसके नीचे सभी एलिमेंट जीरो हो गए, तो इसका यूज रोल हो गया। अब हम देखते सेकंड रो, तो ये हमारा लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट्स भी है, तो इसका यूज करके हमें यहाँ R3 में जीरो करना है और R4 में जीरो करना है। तो बहुत सिंपल है, -2 और -2 यानी -2 + 2 0 होता है, तो R3 चेंजेस R3 माइनस R2। अब R4 में भी चेंज करना है, तो -4 माइनस -2 0 नहीं होता है, तो R4 चेंजेस R4 यानी -4 + 4 0 हो जाएगा, तो यहाँ में R4 -2 टाइम्स R2। अब ये चेंज हम करने जा रहे हैं, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, इट इज नॉट इक्वल टू ओल्ड, इट इज इक्वलेंट टू ओल्ड। तो फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 1 6, इसमें कोई चेंज नहीं किया। सेकंड रो भी एज इट इज, अब इस बार इसमें भी कोई चेंज नहीं कर रहे, -1। अब जो चेंज हो रहा है वो R3 और R4 में। अब ये जो यहाँ 0 आया है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अब R3 चेंजेस R3 माइनस R2, तो -2 माइनस -2 मीन्स -2 + 2 आंसर इज 0, -2 -1 आंसर इज -3, -10 -1 यानी -10 + 1 हो गया, आंसर -9 आ रहा है। अब R4 में चेंज कर रहे हैं, R4 चेंजेस R4 -2 टाइम्स R2, तो 0 -2 टाइम्स 0 आंसर इज 0, -4 -2 टाइम्स -2 मीन्स -4 + 4 आंसर 0। अब 1 -2 टाइम्स 1 आंसर 1 -2 -1, और -5 -2 टाइम्स -1, तो ये हो गया -5 + 2, जो आंसर आ रहा है -3। अब ये हमारा लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट था R2 का, और ऑल द एलिमेंट्स बिलो दिस एलिमेंट्स आर जीरोज, तो इसका भी रोल हो गया। अब हम चलते R3 में देखते, तो यह है -3 जो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है। अब हमें जीरो करना है R4 में बाय यूजिंग दिस -3, तो R4 सिर्फ R4 में चेंज करेंगे। अब -1 और -3, तो अब हम अब -1 तो हम मल्टीप्लाई करते R4 को 3 टाइम्स से, 3 टाइम्स R4। अब माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये -1 के पास ऑलरेडी माइनस साइन है, तो -R3। तो ये चेंज करने जा रहे हैं, तो जो नया मैट्रिक्स मिल रहा है इट इज इक्वलेंट टू गिवन मैट्रिक्स और बोल्ड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, 1 1 1 6 0 -2, सेकंड रो भी एज इट इज है, और थर्ड रो भी 0 0 -3 और -9। अब चेंज होने जा रहा है R4 में, तो 3 टाइम्स R4 -R3, तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा, 0 0। अब यहाँ चेंज होने जा रहा है, तो 3 टाइम्स R4 मीन्स -3 -R3, तो -3 -3 -3 + 3 आंसर इज 0। अब 3 टाइम्स R4 मीन्स 3 टाइम्स -3
-9 माइनस R3, तो माइनस माइनस प्लस, तो +9, तो -9 + 9 आंसर इज 0। अब ये हो गया, दिस इज लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट इन फर्स्ट रो, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट इन सेकंड रो, दिस इज लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट इन third row, and this is the zero row, and this is at the bottom of the given matrix. This is the echelon form of the given matrix. Now number of non-zero rows in the row echelon form is called the rank of the given matrix. So here rank A is equal to number of non-zero rows. So 1, this is the first non-zero row, this is second non-zero row, and this is the third non-zero row. So here number of non-zero row is equal to 3, and therefore rank is equal to 3. So here we get the rank of the given matrix. आई होप आप सबको ये रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स टॉपिक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच।